Numbers 22. गिनती की पुस्तक में उसका 22वां अध्याय। Numbers 22 tells us the story of a man called Balaam. और गिनती के 22वां अध्याय जो है बिलाम नामक एक व्यक्ति के बारे में कहानी बताता है। The king of Moab sent for Balaam, who was a witch doctor. Everyone say witch doctor. और देखते हैं राजा मोआब ने, जो कि एक जैसे देख सकते हैं तांत्रिक था, उसके पास भेजा गया था। This witch doctor Balaam was a very powerful witch doctor. He was a famous witch doctor. और देखते हैं यह जादूगर जैसा कि एक बिलाम जो कि एक मशहूर था, बड़ा सामर्थशाली था। Now with that understanding, और इस समझ के साथ let's read Numbers chapter 22 verses 5 onwards. Listen very carefully, very short, very important. और आइए पढ़ेंगे 5वें वचन से गिनती की पुस्तक में, बड़ा छोटा सा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then the king of Moab sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pithor, which is near the river in the land of the sons of his people, to call him, saying, Look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth and are settling next to me. और देखिए मोआब का राजा ने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। Verse 6. 6वां वचन। Therefore, इसलिए please come at once and curse this people for me, for they are too mighty for me. इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हो गए हैं। Come and curse this people for me, because they are too mighty for me. आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हो गए हैं। Come and curse this people for me, because they are mighty than me. आ और इनको शाप दे, क्योंकि ये मुझसे अधिक बलवंत हो गए हैं। Here it shows us और यहाँ पर वचन दिखाता that है the king of Moab कि मोआब का राजा is calling one witch doctor called Balaam to come and curse God's people. और एक तांत्रिक को बुलाता जिसका नाम था बिलाम, कि आकर परमेश्वर के लोगों पर वो शाप बोले। And the reason for the curse, the witch doctor to curse them, is simple, because he cannot defeat them. So he's telling the witch doctor, come, curse them for me, then I will take care of them. और देखते हैं क्योंकि वो मोआब का राजा उन लोगों पर जयवंत नहीं हो सकता था, इसलिए कारण, छोटा सा कारण था कि उसने यहाँ पर उस तांत्रिक को बुलाया कि आए और परमेश्वर के लोगों पर शाप दें। Notice this. गौर करें। Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। Mr. Witch Doctor, और श्रीमान तांत्रिक, after you have cursed them, और तुम्हारे शाप देने के बाद I will be able to drive them. और मैं उन्हें निकाल सकूंगा। How many of you following me what I'm saying? और कितने समझ रहे हो भाई कह रहे हैं? Hello. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Even today, आज भी there are people who cannot overpower you, cannot put you down just like that. So they will hire the services of some witch doctors and put a curse on you, upon your loved ones, upon your business, upon what you're called to do, and then you will be defeated. Know anybody like that? और आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो आप पर जय नहीं हो पाते हैं और आपकी चीजों पर वह प्रभुता नहीं करने पाते हैं, या फिर आपके प्रियजनों पर, आपके व्यवसाय पर। तो देखते हैं कि वो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं ताकि उनके माध्यम से वे आप पर जय पा लें। क्या कोई है ऐसा? Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? और क्या आप सुन रहे हैं हमारी बात? The Bible exposes the devil. और बाइबल जो है शैतान का बिल्कुल खुला पर्दाफाश कर देती है। Many people don't bring the Bibles. और अनेकों लोग बाइबल नहीं लाते। But if you only knew the deep things in the Word of God. मगर यदि केवल आप जान जाए परमेश्वर के वचन में की गहरी चीजों को। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। For I know that whom you bless is blessed, and him whom you curse is cursed. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner's fee in their hand, and they came to Balaam and spoke to him the words of Balak. और देखिए आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिया भावी कहने की दक्षिणा लेकर बिलाम के पास पहुंचकर बालक को बातें कह सुनाई। Say this after me. The king of Moab, जोर से बोलिए, the king of Moab wanted Balaam to curse Israel. और मोआब का राजा, मेरे पीछे बोलिए, मोआब का राजा चाहता था कि बिलाम इजरायली लोगों पर श्राप दें। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Write it down. लिख लीजिए इसे। You see, he wanted to cripple them spiritually, और वो चाहता था कि आत्मिक रीति से उन्हें अपंग बना दें, so that they could be defeated in battle. ताकि युद्ध में फिर वे हार जाएं। Please listen very carefully. कृपया ध्यान से सुनिए। The purpose of the curse
और शाप का उद्देश्य was to weaken them spiritually. और ये शाप का कारण यह था कि उन्हें आत्मिक रीति से अपंग ही कर दें। Every man's strength is not physical. Brothers and sisters, every man's strength is spiritual in nature. और देखते हैं कि स्वाभाविक तौर पर हर एक मनुष्य का जो सामर्थ्य वो आत्मिक रीति से होता You है। see, we boast a lot in our physical strength. हम देखते हैं कि हम अपने शारीरिक ताकतों पर बहुत ही डिंग मारते हैं, हम ऐसा करेगा, वैसा हम करेगा. ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। Just one depression puts a man off. बस एक तनाव और वो मनुष्य बस खत्म। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? What is wrong with the person? Hands are shaking, legs क्या are गलत है उस shaking. व्यक्ति के But साथ? just something has attacked that person spiritually, आदमी खत्म. बस किसी चीज ने आत्मिक रीति से उस व्यक्ति पर आघात किया और वह खत्म हो गया। So you see, real strength lies in the spirit. तो आप देखते हैं कि सच्ची ताकत जो है ये आत्मा पर निर्भर होती है। Hallelujah. हालेलुया। So your strength is not the physical strength. My friend, please listen to me. ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों कि आपकी जो ताकत है वो सच्ची शारीरिक ताकत नहीं है, Real strength lies in the spirit. और आपकी वास्तविक ताकत जो है आपकी आत्मा में रहती है। Once you understand this, जब एक बार आप इसे समझ जाएंगे you'll be successful. आप सफल हो जाएंगे। That's why इसीलिए you need to develop your spirit man और आपको अपने आत्मिक मनुष्यत्व को विकसित करने की जरूरत है, through prayer, प्रार्थना के द्वारा, through fasting, उपवास के द्वारा, through the word of God. परमेश्वर के वचन द्वारा, Because real strength is in the spirit. क्योंकि सच्ची ताकत जो है वो आत्मा में होती है। I told you last time पिछली बार जैसे भाई ने बताया था आपको, that the spirit of a man sustains a man in times of trouble. और जैसे कि पिछली बार बताया गया था कि मनुष्य की आत्मा ही संकटों के समय मनुष्य को संभालती है। Hallelujah. हालेलुया। सुनिए, सब जन बोले, मनुष्य की आत्मा उन लोगों को संकटों के समय संभालती है. You know, many people, they give up. जीते जीते मर जाते हैं. अनेक लोग हार मान जाते हैं, बस जीते जीते मर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं हो रहा. अरे तू ठीक है यार, तू हट्टा खट्टा है, सब ठीक है तेरा. नहीं यार, अभी नहीं होता, बस अभी बस. What happened? क्या होता A है? man's spirit is finished. उस मनुष्य की आत्मा बिल्कुल खत्म हो गई Man's है। spirit is finished. उस मनुष्य की आत्मा खत्म हो गई है Real strength lies in the spirit. और सच्ची ताकत जो है आत्मा में रहती है। That's why you need to come. Every Tuesday we have a meeting over here. You need to come and be a part of it. Just don't go here and there, whatever. But please see to it that you come properly in time on a Tuesday meeting over here. Every Tuesday we have a meeting here. और इसलिए हर मंगलवार को हमारी यहाँ पर सभा होती है और चाहते हैं कि जरूरी है कि आप हर मंगलवार के सभा पर सही समय पर यहाँ पर आप आएं। Hallelujah. हालेलुया। Spirit. So first thing I want to say, real strength lies in the spirit. Say it after me. Real strength lies in the spirit. सच्ची ताकत जो होती है ये आत्मा में निवास करती So है। you see over here that Balak, that's the king of Moab, wanted to spiritually cripple Israel. तो देखते हैं राजा बालाक जो था वो आत्मिक रीति से इजरायलियों को अपंग करना चाहता था। The second point, दूसरा मुद्दा write it down. लिख लीजिए इसे। A curse weakens a person. A curse weakens a family. A curse weakens an organization. एक शाप जो होता है एक व्यक्ति को कमजोर कर देती है, एक शाप जो होता है एक परिवार को कमजोर कर देती है, एक शाप जो होता है एक संगठन को कमजोर कर देती है। What is the principle behind a curse? उस शाप के पीछे सिद्धांत क्या है? Simple. साधारण सी A बात। person who's under a curse वो व्यक्ति जो शाप में है can easily be overcome. और बिल्कुल आसान है, जैसे उस पर कोई भी जय पा सकता है। Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए, Let me take you a little deeper. थोड़ा गहराई में ले जाना चाहेंगे आपको। In the battle between David and Goliath, how many of you know David and और कितने लोग Goliath? जानते हैं दाऊद और गोलियात का जो लड़ाई था उसके बारे Now में? David goes before Goliath with just a slingshot and without an armor. और देखते हैं कि दाऊद जाता है गोलियात के सामने एक निशाना साधता है बिना किसी हथियार के। Now listen to me. अब ध्यान से Now सुनिए। how does Goliath speak to David? और गोलियात किस प्रकार से बातें करता है दाऊद को Now देखकर? they have not entered into battle. Sister, listen to this carefully. ध्यान से सुनिए, इस समय उन्होंने लड़ाई तो अभी तक शुरू नहीं की थी। सब जन बोलिए, लड़ाई शुरू नहीं हुई है. सब जन बोलो, युद्ध शुरू नहीं हुआ है. Now how does Goliath deal with David? Notice this. और गौर करें कि कैसे दाऊद जो है गोलियत जो है दाऊद से निपटता है। देखिए कैसे। See what it says. देखिए वचन क्या कहता 1 है। Samuel chapter 17 verse 43 quickly और please. पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 43वां वचन जल्दी से निकालेंगे। David and Goliath standing before each other. और दाऊद और गोलियत जो एक दूसरे का सामना करने के लिए खड़े थे। Please listen. कृपया ध्यान से सुनिए। And now और अब how does Goliath talk to David? और देखिए इस समय की गोलियात कैसे बातें करता है दाऊद से। The battle has not started. और अब लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई थी। Now watch this. अब गौर करें See यहाँ। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Then Philistine, that's Goliath, said to David, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. और पहला शमूएल 17वां अध्याय 43वां वचन में देखें, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। श्राप देने लगा. श्राप देने लगा। यहाँ लिखा है कि आशीर्वाद देने लगा. हेलो,
दाऊद को वो श्राप देने लगा। सब जो बोलिए युद्ध शुरू नहीं हुआ, जोर से बोले युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध शुरू नहीं हुआ, गोलियत क्या करता है? श्राप देता है। दाऊद को श्राप देता है, श्राप देता है, श्राप देता है। बिकॉज यू सी, क्या आप देखते हैं, he wanted to weaken David spiritually. वो चाहता था कि दाऊद को एकदम आत्मिक रीति से कमजोर कर दे। Now please listen, many people ध्यान they से don't सुनिए। believe in the reality of the spiritual realm. और अनेकों लोग आत्मिक स्तर की वास्तविकता को नहीं जानते, नहीं But I समझते। showed you the reality of the spiritual realm. Come on, yes or no? मगर भाई ने आपको दिखाया कि आत्मिक स्तर की वास्तविकता क्या है। Please listen. कृपया ध्यान से सुनिए। David, Goliath tried to weaken David by cursing him. और गोलियात ने यहाँ पर प्रयास किया उसे दाऊद को कमजोर बनाने का श्राप Before देने के David द्वारा। and Goliath could join in battle, Goliath cursed David. Now how does David tackle it? और देखिए गोलियात और दाऊद का लड़ाई छिड़ने से पहले ही हम देखते हैं कि गोलियात ने अपने देवताओं का नाम लेकर जैसे दाऊद पर श्राप देने लगा, मगर कैसे इसे लपटे। Those were demonic forces. और देखते हैं कि ये सारी शैतानी ताकतें हैं, थी उस जमाने। उस जमाने की ताकतें थी, शैतानी ताकतें। I'm not talking about anybody now over here. और अभी नहीं बोल रहे हैं किसी के बारे में। 1 Samuel chapter 17, और पहला शमूएल का 17वां अध्याय verse 45. और पढ़ेंगे इस समय 45 वचन में। Now how does David overcome that curse? और कैसे दाऊद उस शाप पर उसने जय पाया, देखें। See, you come to me with a sword and spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. 45वां वचन देखे, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। And you know what is the story then? फिर आगे की कहानी आप जानते हैं। David knocks the guy with a stone, और दाऊद जो कि निशाना साधता है पत्थर के द्वारा उस गोलियात की ओर, and Goliath is history. और फिर गोलियात जैसे कि इतिहास बनकर रह And जाता है। David becomes the history maker. और फिर देखते हैं कि दाऊद जो कि इतिहास रचने वाला बन जाता है। Hallelujah. Today in the morning, I had a dream. Now I want to share this with you. और आज सुबह भाई ने एक सपना देखा, बताना चाहेंगे। सब लोग सुन रहे हैं? Usually I don't share my dreams unless God allows me to. अक्सर भाई अपने सपनों को बांटते हैं जब तक परमेश्वर ने अनुमति नहीं देता। Unless it is important for the people, I will not share. I was early in the morning, the Lord woke me up. I had a dream. और सुबह तड़के प्रभु ने इन्हें उठाया और इन्होंने एक सपना देखा। It was a very, very important dream connected with the people of God. I want you to listen carefully. और बहुत ही महत्वपूर्ण सपना जो कि परमेश्वर के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो चाहते हैं सभी लोग ध्यान से I सुनिए। saw a demonic creature. और भाई ने देखा एक शैतानी कोई प्राणी को, It's like faced like a lizard with the hands and legs. And please, I don't watch cartoons, so please don't, okay? और छिपकली के जैसा चेहरा है, But जैसा it कुछ। was so demonic. It was so demonic, and it was climbing into a house. और इतना शैतानी, इतना गंदा, जैसा कि वो किसी घर की ओर चढ़ रहा था, घर पर चढ़ रहा था। And I was standing over there, और फिर भाई बताते हैं वहां खड़े थे and I could see in the spirit. और आत्मा में देख पा रहे थे। And I said, what is this creature climbing into somebody's house? और फिर भाई ने पूछा कि ये प्राणी जो किसी घर पे चढ़ने क्या प्रयास कर रहा I है। shouted at that creature. और भाई ने चिल्लाया उस प्राणी की The ओर, creature looked at me and tried to move in. और फिर उसने प्राणी ने भाई की ओर देखकर अंदर प्रवेश कर गया। Suddenly there's a big stone in my hand. और एकाएक भाई के हाथ में बड़े पत्थर थे I जैसे, took that stone and swung it and hit that creature. और जैसे भाई ने उस पत्थर को उठाकर उस प्राणी को मारा, The creature fell down. फिर वो प्राणी गिरा। When I tried to attack that creature, और जब भाई ने प्रयास किया उस पर आक्रमण every करने time I would push the creature down, का, हर बार जब नीचे डालते, जब the creature would get up. फिर वापस वो उठता। And the Holy Spirit said, और फिर son, पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे warn my people मेरे लोगों को, that in these, warn my मेरे लोगों को people चेतावनी दो that in these last कि days, इन अंतिम दिनों में there are demonic creatures released against God's people. ऐसे शैतानी जो प्राणी हैं जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में ऐसे भेजे There जाएंगे, are मुक्त किए demonic, जाएंगे। please listen, how many of you listening? कृपया ध्यान से सुनिए इस समय, How many of you listening? कितने लोग सुन रहे हैं। God's people will experience unexplained sicknesses. और परमेश्वर के लोग अनुभव करेंगे ऐसी बीमारी जिसके बारे में बयान भी नहीं की जा That सकती, is not from God. और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, That is from the devil. और ये शैतान की ओर से है। We need to overcome the curses of the devil through the name of Jesus and through the blood of Jesus. और शैतान के शापों पर हमें जय पाना यीशु के नाम के द्वारा और यीशु के लहू द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. The servants of Satan are behind this. और शैतान के जो सेवक और तांत्रिक लोग इसके पीछे हैं। Just as we are preaching the gospel and furthering the kingdom of God. और जैसे हम जैसे लोग जैसे परमेश्वर के राज्य सुसमाचार प्रचार करके उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं, How many of you following me what I'm और कितने saying? लोग समझ रहे हैं। Just as we are preaching the gospel and the kingdom of God is being built up. और जैसे हम जैसे लोग जैसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है, In the same way, ठीक उसी प्रकार से they are trying to expand the kingdom of Satan. और वो भी प्रयास करते हैं शैतान के राज्य को बढ़ाने का। So those are the curses. Everyone say causes of curses. Causes of those problems. उन समस्याओं का कारण, उन शापों का कारण। So that is why I warn you that you have to break those curses
over your life, over your family, through the blood of Jesus, which was atoned for us, and in the name of Jesus. Somebody say amen. इसीलिए आपको चेतावनी दी गई है कि यीशु के नाम और यीशु के लहू द्वारा उन शापों को अपने घर परिवार पर से उसे तोड़ दीजिए। Please don't take my message very lightly. और कृपया करके भाई के संदेश को हल्के में न लें। Don't take your spiritual life very lightly. और अपने आत्मिक जीवन को हल्के में न लें। It's not time to sleep. और ये सोने का समय नहीं। It's time to rise and shine, for the glory of God has और come. ये परमेश्वर की महिमा आ गई, इसलिए उठकर चमकने का समय आ चुका है। How many of you following me what I'm saying? और कितने लोग समझो भाई कह रहे हैं? It is not time to play games in the body of Christ. और ये समय नहीं है कि मसीह के देह में आप कोई खेल खेलें। Listen to me. ध्यान से I सुनिए। also want to tell you today और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे भाई that आज after today, कि आज के बाद after today what we have fasted and prayed, many of the sicknesses will not show up in the doctor's report in Jesus' name. और आपकी अनेकों बीमारियां जो है वैद्यों के रिपोर्ट में दिखाई भी नहीं पड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। How can you say और that? कैसे आप ये बोल सकते My हैं? friend, मेरे दोस्तों, faithful is he who called me. और विश्वास योग्य वो जिसने भाई को बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. The things that were troubling you will not trouble you, because the root has been cut off in the name of Jesus. और वो चीजें जो आपको सताती रही आपके बाद सताएंगे नहीं, क्योंकि जड़ से वो काट दी गई यीशु के नाम में। But make sure that you don't go back into bondage again, just like the Egyptians wanting to go back in bondage. मगर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप फिर से लौटकर उन बंधनों में न जाएं, जैसे मिस्री लोगों, जैसे इजरायलियों ने चाहा कि मिस्र की गुलामी में वापस में जाएं। Hello. If you have confessed your sin today, यदि आज आपने अपने पापों को अंगीकार कर लिया है, don't go back to that vomit. और उस उल्टी की ओर वापस न जाएं। It's over. पूरा हो चुका है। The Bible says a dog returns to his vomit. और बाइबल ऐसा कहती है कि कुत्ता जो अपनी छांट अपनी उल्टी के पास वापस लौट कर जो आता है। गंदे काम तुमने छोड़ दिए थे, उनके पास वापस मत चले जाओ। जो गंदे काम आपने छोड़ दिए थे उसके पास वापस मत जाओ। जो काम अपने परमेश्वर के सामने कबूल किए थे, अंगीकार किए थे, उनको वापस मत चले जाओ। जो काम आपने परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया था, अंगीकार कर लिए थे, उन्हें करने के लिए वापस न चले जाओ। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं भाई? Be कह रहे हैं। serious about prayer. प्रार्थना के बारे में गंभीर बन जाओ। The Bible warns us. और बाइबल हमें चेतावनी देती Be है। serious and watchful in your prayers. और जागते रहो और सचेत रहो अपनी प्रार्थना में। Touch your neighbor and say, be serious and watchful in your अपने prayers. पड़ोसी को छूकर कहें इस समय कि गंभीर हो जाओ, सचेत हो जाओ अपनी प्रार्थना के Tell लिए। your other neighbor, be serious and watchful in your अपने prayers. दूसरे पड़ोसी से भी कहें सचेत हो जाओ, गंभीर हो जाओ अपनी प्रार्थना में। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. There is going to be a battle. और ऐसी एक लड़ाई होने जा रही है। I speak prophetically. There's going to be a battle. और भाई भविष्यवक्ताई के रूप में बोल रहे हैं कि ऐसा युद्ध छिड़ने वाला है। And can I tell you who's going to win? और क्या आप कह सकते हैं भाई कि कौन जीतेगा? God's people are going to win, brother. परमेश्वर के लोग Hallelujah. ही जीतने जा रहे हैं भाई। I said God's people are going to भाई win. ने कहा परमेश्वर के लोग ही जीतेंगे। Why? It is written. क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है। Somebody say we are in the winning team. और कोई कहेगा हम विजेता टीम में हैं। Tell your neighbor, don't go to sleep now, okay? अपने पड़ोसी को कहना है अभी न सो। Hallelujah. Hallelujah. You may think I'm an idiot, so be it, but I'm God's servant. जैसा भी आप भाई के बारे में सोचते हैं, मगर भाई परमेश्वर के जन हैं। How many of you listen to me? और कितने लोग सुन रहे हैं भाई Don't के? waste your time. Give priority to God. और अपना समय बर्बाद ना करें, परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता दें। Give priority to God's service. और परमेश्वर की सेवा के लिए प्राथमिकता दें। In this way, इस तरीके you से can protect yourself from the curses of the devil. और आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे शैतान के शापों से। Hello. I want to warn you also next one last thing. In the night, और रात में before you sleep, आपके सोने से पहले always seal your house with the oil, with any oil, or you can use the blessed oil. Seal your family members with this, and in this way you can have a constant protection of the Lord over your family. How many of you are listening? और कितने लोग सुन रहे हैं? हर रात आपको सोने से पहले तेल के द्वारा या फिर यह आशीषित तेल या किसी भी प्रकार के तेल के द्वारा अपने घर, अपने परिवार को To ऐसा पूरी take the तरह ढक blood लीजिए on your family, और फिर आप सोइएगा, फिर पूरी तरह से निरंतर आप सुरक्षित रहेंगे। and in this way इस तरीके से you can break the curse of servants of Satan over your family. I'm telling you this message because God told me to speak this message. It will happen and you will have total deliverance in Jesus' name. और इस प्रकार से शैतान के जो दास हैं उनके शापों को आप पूरी तरह से तोड़ देंगे और आपके परिवार में और आपके पास विजयी रहेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, it is not a physical battle. अपने पड़ोसी से बोलिए इस समय कि ये शारीरिक लड़ाई नहीं Tell है। your other neighbor, it is not a physical battle. अपने पड़ोसी से बोलिए कि ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। गोली और बंदूक से बैटल नहीं जीत सकता रे सर तुम। कोर्ट केस में डाल के बैटल नहीं जीत सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तुम कितना भी केस डालो, तुम बैटल नहीं जीतेगा। तुम मर जाएगा, केस चालू रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, again I want to warn you. और फिर से आपको चेतावनी देना Today चाहेंगे। this message is there are curses over God's people for two reasons. They are lazy
they've allowed the enemy to enter into their परमेश्वर lives. के लोगों पर ऐसा दुष्शाप पड़ते हैं क्योंकि इस कारणवश की एक तो ये आलसी हैं और दूसरा उन्होंने अनुमति दे दी कि शैतान की दुष्टात्मा है उनमें प्रवेश कर जाएं। But today, मगर आज if you will say, yes, Brother Michael, यदि आप कहेंगे हाँ भाई I माइकल, love my family, मैं अपने परिवार से प्यार I करता love हूँ, my home, अपने घर से मुझे प्यार and है I know now why these things are happening. और अब मैं जान चुका हूँ क्यों ये चीजें हो रही हैं। Listen to me. सुनिए In हमारी the night, the रात में servants of Satan are sending curses. God showed me against God's people. The servants of Satan are sending curses against God's people. But if you be alert, you and your family in this time of famine will walk in victory and victory and victory in the name of Jesus. Let those who have ears open your ears and listen to what the Holy Spirit says. जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Night time, रात के समय। before you go to sleep, don't आपके- watch the TV and just go to sleep with some laddu, at the side. आपके सोने से पहले टीवी देखकर यूं ना सो जाएं, Pray. प्रार्थना कीजिएगा। That's why Jesus said, watch and pray. और इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। Tell your neighbor, watch and pray. हमने पड़ोसी से कहें जागते रहो प्रार्थना What करो। time did they come to arrest Jesus? और कौन से समय पर आए थे यीशु को गिरफ्तार करने? What time did they come to arrest और Jesus? किस समय पर वे आए थे यीशु को गिरफ्तार करने? They came to arrest the King of Kings and the Lord of Lords at the night. And Jesus said, this is the hour of darkness. और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए थे और रात के समय में, और फिर यीशु मसीह ने कहा यह रात का समय, यह अंधकार का समय है, Hour of darkness. अंधकार की सामर्थ का समय, Hour of darkness. अंधकार का समय। Today, I showed you the causes आज जैसे भाई ने आपको कारण बताए why many Christians are suffering. और क्यों अनेकों मसीह पीड़ित हैं। Many unexplained sicknesses, many unexplained pains. You're praying, you're fasting, nothing happens. There is no breakthrough in your life. But now you know the cause, you know how to overcome it, you know what to do, and may God give you the victory in Jesus' name. And the people और जैसे आपने said, कारण जान लिया किस Amen. प्रकार से आपको विजय होना है और परमेश्वर आपको विजयी बनाए। let's give यीशु the के Lord नाम a में। big clap offering and shout एक को जोरदार hallelujah. ताली की बेचड़ा चिल्लाएंगे हालेलुया।